Our today's topic is roots of parenteral therapy. Parenteral therapy कौन सी होती है? In which the medication is given except GI tract. GI tract को छोड़ के अगर किसी अदर रूट के थ्रू मेडिकेशन दी जाए तो that is called as parenteral therapy. तो these terms are already covered. It include the route of parenteral therapy include intradermal, subcutaneous, intramuscular, intravenous. In intradermal route, the medication is administered into the dermis layer of the skin. In subcutaneous administration, the medication is administered into subcutaneous tissue. Intramuscular में medication administered into muscles. Or in intravenous, the medication is administered into the vein. Advanced technique include epidural. In epidural, medication administered into the epidural space. In intrathecal route is also called as intraspinal route. In this, the medication is administered into the subarachnoid space. Intraosseous, in this medication administered into the bone marrow. Intraperitoneal, in this medication administered into the peritoneal cavity. Intrapleural, in this medication administered into the pleural cavity. Intraarterial, in which the medication administered into the arteries. Intraarticular, the medication is administered into the joint. Or in intracardiac, the medication administered into the cardiac tissue. So these are the advanced technique of the parenteral therapy. Now first one is intradermal injection. As I have already told you that in intradermal injection, the injection is administered into the dermis layer of the skin, which is beneath the epidermis, है ना. epidermis के नीचे वाली जो layer है that is dermis layer. तो इसमें हम small amount of fluid ही administer कर सकते हैं. अगर ज़्यादा amount में करेंगे तो skin tear हो सकता है. For example, up to 0.1 ml तक administer कर सकते हैं. And this method is frequently used for either एलर्जी टेस्टिंग और ट्यूबरकुलोसिस स्क्रीनिंग, है ना. जैसे कि पेशेंट को एंटीबायोटिक्स एडमिनिस्टर होने होते हैं, उससे पहले भी एंटीबायोटिक के लिए क्या एलर्जी टेस्टिंग की जाती है. तो एलर्जी टेस्टिंग के लिए इंट्राडर्मल इंजेक्शन एडमिनिस्टर करते हैं. या तो अगर ट्यूबरकुलोसिस स्क्रीनिंग करनी है उसके लिए माउंटेक्स टेस्ट किया जाता है, जिसमें इंट्राडर्मल पीपीटी प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव को एडमिनिस्टर किया जाता है. तो यूज़ अ ट्यूबरकुलिन और स्मॉल हाइपोडर्मिक सिरिंज, है ना. जब स्किन में इंजेक्ट करना है तो उसके लिए हमें छोटे गॉज वाली सिरिंज का यूज़ करना पड़ेगा. तो इट माइट बी ट्यूबरकुलिन सिरिंज और हाइपोडर्मिक syringe. And the angle of intradermal injection is 5 to 15 डिग्री. एंगल भी याद होना चाहिए आपको. 5 to 15 डिग्री एंगल होता है इंट्राडर्मल एडमिनिस्ट्रेशन में. तो आफ्टर इंजेक्टिंग द मेडिकेशन अ स्मॉल bulb resembling a mosquito bite appear on the surface of the skin. ब्लैब का मतलब होता है एक ब्लिस्टर टाइप का, छोटा सा ब्लिस्टर. स्मॉल ब्लिस्टर विल बी फॉर्म्ड एज शोन हियर, है ना. इंट्राडर्मल इंजेक्शन के बाद यहाँ पे ब्लिस्टर फॉर्मेशन होगी, तो इट इज कॉल्ड एज बल्ब. After that, the subcutaneous injection. The sites in subcutaneous injection, the injection is administered into the subcutaneous tissue which are under the dermis layer. So these are the sites of subcutaneous injection. The outer posterior aspect of upper arm as shown here. These are the outer aspect of upper arm, abdomen. The anterior aspect of thighs, these are thighs anterior aspect. And scapular area of the upper back, this is scapular area. Here also subcutaneous injection can be given. The upper ventral or dorsal gluteal surfaces, these are the sites of the subcutaneous tissue. So in subcutaneous tissue the angle is 45 degree. बट इट मे डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द नीडल, है ना. आजकल जो नीडल्स आती हैं तो दे माइट बी गिवन एट द 90 डिग्री एंगल, क्योंकि जो नीडल हैं देयर साइज इज स्मॉल, सो द इंजेक्शन कैन बी गिवन एट द 90 डिग्री. बट जो अगर 1 मार्क्स में आता है द एंगल ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू इज दैट इज 45 डिग्री. तो काइंड ऑफ ड्रग कॉमनली एडमिनिस्टर क्या एडमिनिस्टर कर सकते हैं सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू? वैक्सीन्स, प्री ऑपरेटिव मेडिकेशंस, नार्कोटिक्स, इंसुलिन, हेपेरिन, और ओनली a small volume can be administered
थ्रू सबक्यूटेनियस रूट सच एज 0.5 to 1.5 या 2 ml तक एडमिनिस्टर कर सकते हैं। और जो एंगल ऑफ इंसर्शन है दैट इज 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री। After that, next is intramuscular injection. In intramuscular injection, the injection is administered into the muscles. The angle of intramuscular injection is 90 degree. तो इसमें जो अमाउंट इन्फ्यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ 2 to 5 ml। अगर डेल्टॉइड मसल है तो थोड़ा कम अमाउंट एडमिनिस्टर करेंगे, लेस देन 3 ml के लिए डेल्टॉइड यूज़ होती है, और अगर उससे ज़्यादा है तो ग्लूटियल मसल या अदर जो ब्रॉड मसल्स हैं उसमें एडमिनिस्टर करते हैं। 2 to 5 ml ऑफ मेडिकेशन कैन बी एडमिनिस्टर्ड इनटू अ लार्ज मसल फॉर एन अडल्ट। द साइट्स ऑफ IM medication are, these are the sites of IM injection: ventrogluteal, dorsogluteal, vastus lateralis or deltoid. You should know their names: ventrogluteal, dorsogluteal, vastus lateralis or deltoid muscle. The first one is ventrogluteal site. As the name indicate, gluteal, it is present in the gluteal region. बटक एरिया जो होता है उसमें ये प्रेजेंट होती है। इंजेक्शन इज गिवन टू ग्लूटियस मीडियस मसल। तो इसमें पेशेंट को प्रोन या तो साइडलाइन पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, विद द नी बेंट एंड रेस स्लाइटली टुवर्ड द चेस्ट। और जो पर्सन का नी होगा उसको थोड़ा बेंड करने के लिए बोलेंगे ताकि आपको ग्रेटर ट्रोकेंटर फील हो जाए। जब नी पर्सन का थोड़ा सा बेंड, एक लेग स्ट्रेट होगी, दूसरी लेग थोड़ी बेंड होगी, तो नर्स प्लेस द हील ऑफ हैंड ऑन द क्लाइंट ग्रेटर ट्रोकेंटर। तो जो हील ऑफ हैंड है या तो हील को कहाँ प्लेस करेंगे, ग्रेटर ट्रोकेंटर में प्लेस करेंगे, with the finger pointed toward the client head as shown here. This part is called as the greater trochanter. This part is called as greater trochanter. जो हैंड की हील है उसको यहाँ पे रखना है, और जो फिंगर्स हैं, फिंगर्स शुड बी टुवर्ड द क्लाइंट हेड वाली साइड को होंगी ना। एंड दिस इज एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, एक पॉइंटेड जैसा एज होता है बोन का, और दिस इज इलियक क्रस्ट। These are in the pelvis. These structure you will study in the pelvis. So this is greater trochanter, this is anterior superior iliac spine, this is iliac crust. तो point the thumb toward the patient groin, ठीक है। Firstly place the heel of hand on the greater trochanter. After that point the finger toward the client face, and the thumb should be toward the groin region, and the index finger toward the anterior superior इलियक स्पाइन। जैसे मैंने आपको यहाँ भी बताया, दिस इज एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। तो जो इंडेक्स फिंगर है दैट शुड बी टुवर्ड द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, और जो मिडिल फिंगर है दैट इज एट द इलियक क्रस्ट, ठीक है। तो इन दोनों के बीच जो मिडिल फिंगर है उसको थोड़ा स्ट्रेच करेंगे इलियक क्रस्ट की साइड को, और एक वी शेप्ड ट्रायंगल फॉर्म होगा, और वी शेप्ड ट्रायंगल का जो मिडल है, दिस मिडल इज द साइट ऑफ द इंजेक्शन, ठीक है। तो इन वेंट्रोग्ल्यूटियल वी याद रखना है, वेंट्रोग्ल्यूटियल मतलब वी है ना, तो इसमें वी शेप का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। वी का जो सेंटर है दैट इज द साइट ऑफ इंजेक्शन एडमिनिस्टर। सबसे पहले पेशेंट को प्रोन पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, साइडलाइन पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, देन टेल द पेशेंट टू एक्सटेंड हिज, टू स्लाइटली फ्लेक्स हिज लेग, एंड देन प्लेस योर हील ऑफ द हैंड ऑन द ग्रेटर ट्रोकेंटर एंड फिंगर टुवर्ड द क्लाइंट हेड, then place the index finger on the anterior superior iliac spine and stretch the middle finger. जब stretch करेंगे it should be on the iliac crest, and there should be a V-shaped triangle, and the center of the triangle is the site of ventrogluteal administration as shown here. This is greater trochanter, ठीक है। ग्रेटर ट्रोकेंटर के ऊपर हील प्लेस की, दिस इज एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, और दिस इज इलियक क्रस्ट। तो जो सेंटर है वी शेप ट्रायंगल का दैट इज द साइट ऑफ इंजेक्शन। नेक्स्ट इज द डॉर्सोग्लूटियल साइट।
In dorsogluteal, injection is given to the gluteus maximus muscle. Then position provide करनी है, prone position provide करेंगे patient को, and draw imaginary line to divide the buttock into the 4 equal quadrant. This is one buttock, this is second. तो एक buttock को 4 quadrant में इमेजिनरी लाइन के साथ डिवाइड कर देंगे. तो जो अपर आउटर क्वाड्रेंट होगा, दिस इज अपर आउटर क्वाड्रेंट है ना. तो इट इज द साइट ऑफ द इंजेक्शन. डॉर्सोग्लूटियल साइट में जो बटक मसल है, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स विद द इमेजिनरी लाइन, एंड द अपर आउटर क्वाड्रेंट इज द साइट ऑफ injection. After that, next is vastus lateralis. The muscle is located on the anterior lateral aspect of the thigh. This is thigh, this is greater trochanter और this is लेटरल कॉन्डाइल. तो इन दोनों के बीच का जो मसल है, ठीक है, तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं. 1, 2 और 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे. जो मिडल वाला पार्ट है उसका एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट थोड़ा सा एंटीरियर है ना, और दिस इज लेटरल. तो इसके मिडल वाला ये जो पार्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे इंजेक्शन एडमिनिस्टर करेंगे. एंटीरियर और लेटरल के बीच वाला जो एरिया होगा. एज शोन हियर, द लैंडमार्क इज एस्टेब्लिश्ड बाय डिवाइडिंग द एरिया बिटवीन द ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर एंड द लेटरल फ्यूमोरल इनटू द थर्ड. 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, और जो मिडल थर्ड है उसमें इंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट में इंजेक्शन एडमिनिस्टर करेंगे. आफ्टर दैट, नेक्स्ट इज डेल्टोइड साइट फाउंड ऑन द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द अपर आर्म. लेटरल हो गया जो साइड वाले एस्पेक्ट है, ठीक है. तो द लोकेट द साइट बाय प्लेसिंग द 4 फिंगर अक्रॉस द डेल्टोइड मसल. डेल्टोइड मसल का जो टॉप है उसके ऊपर 4 फिंगर प्लेस करेंगे. जो फर्स्ट फिंगर है दैट शुड बी ऑन द एक्रोमियन प्रोसेस, और जो 3 फिंगर बच गई उनको डाउनवर्ड हमने प्लेस करना है. द इंजेक्शन साइट इज देन 3 फिंगर विड्थ बिलो द एक्रोमियन प्रोसेस, है ना. 1 फिंगर तो एक्रोमियन प्रोसेस के ऊपर होगी, बाकी जो 3 फिंगर है उनकी विड्थ हमने लेनी है. उसके नीचे वाला जो पार्ट है दैट इज द साइट ऑफ द इंजेक्शन. एज शोन हियर, दिस इज एक्रोमियन प्रोसेस. फर्स्ट फिंगर इज प्लेस्ड ऑन द एक्रोमियन प्रोसेस, and this is the site of the injection administration. This is deltoid administration. After that, the angle, these are the layers of the skin tissues. This is epidermis, dermis, subcutaneous tissue और muscular layer. तो जो intramuscular injection है that should be at the 90 degree, so the needle may reach at the muscle, and in subcutaneous tissue the needle is at the 45 degree angle, and the injection is administered into subcutaneous tissue. or in intradermal the injection angle is at least 15 degree, 5 to 15 degree angle, and it should be given into the dermis layer. After that, the Z-track method. Z-track method is also a method of intramuscular injection. So when administering IM injection, the Z-track method can be used to minimize local skin irritation by sealing the medication in the muscle tissue. इस टेक्निक के थ्रू जो मेडिकेशन है वो मसल लेयर में सील हो जाएगी. There are less chances of leakage of the medication into the upper skin such as subcutaneous tissue or dermis. The Z-track method has been found to be less painful होता है, और लीकेज के चांसेस भी इसमें कम होते हैं. लीकेज कहाँ होगी? मसल से सबक्यूटेनियस टिश्यू में, है ना. सबक्यूटेनियस टिश्यू से डर्मिस में हो सकती है, तो उस लीकेज के चांसेस को ये कम कर देता है. तो फॉर एडमिनिस्ट्रिंग अ Z-track मेथड, पुल द ओवरलाइंग स्किन and subcutaneous tissue approximately 2.5 to 3.5 centimeter laterally and downward as shown here. अगर जो इंजेक्शन है वो यहाँ पे एडमिनिस्टर करना है, ठीक है, तो यहाँ से जो स्किन है उसको थोड़ा सा पुल करेंगे लेटरली और डाउनवर्ड खींचेंगे इसको, जैसे यहाँ दिखाया गया है. ये नॉर्मल जो सीक्वेंस है ऐसे है, और यहाँ पे स्किन को क्या किया, पुल किया गया, और जो टिश्यू है वो थोड़ा डिवाइड हो गए, है ना. आफ्टर दैट, होल्ड द स्किन इन दिस पोजीशन. वैसे ही स्किन को होल्ड करके रखना है, स्किन को पुल करके रखना है, और एडमिनिस्टर द इंजेक्शन एडमिनिस्टर कर दिया. आफ्टर दैट,
When you release the syringe, then you also release the skin. ठीक है, with the needle at 90 degree angle to the site administer the medication. जब IM injection है तो 90 डिग्री पे administer करना पड़ेगा. After that the skin should be released. ठीक है, जब स्किन को रिलीज करेंगे तो जो मेडिकेशन है, देयर आर लेस चांसेस ऑफ लीकेज ऑफ मेडिकेशन. After that intravenous administration, intravenous means injection is administered at in the vein, तो it should be with direct IV push और IV infusion के through. Infusion means जब large amount of fluid directly administer करते हैं vein के through, तो that is called as intravenous infusion. तो this route is the most used, and there is the rapid absorption of the medication, and the angle in the intravenous administration is for 25 to 30 degree. The veins used for intravenous administration are basalic vein, medial cuboidal vein, dorsal vein, medial vein, radial vein, cephalic vein. और फुट की भी कई बार क्या होता है, मतलब जो अपर एक्सट्रीमिटीज़ हैं उसकी वेन विजिबल नहीं होती, तो द वी कैन यूज़ द फुट वेन ऑल्सो, सच एज ग्रेटर सिफेलिक वेन और डोर्सल प्लेक्सिस वेन. आफ्टर दैट द पार्ट्स ऑफ IV infusion set. This is the spike which is inserted into the bottle. IV bottle में इसको insert करते हैं. This is drip chamber and this is solution filter. कुछ जो IV infusion set होते हैं उसमें filter present होता है. And this is solution filter and this is tubing and this is roller clamp and this is injection site connector which is connected to the cannula, and this is needle. These are the parts of IV infusion set. After that the complication to observe for during IV therapy. जब person IV therapy पे है तो उसको क्या complication हो सकते हैं. First is infiltration. Infiltration में जो fluid है it may escape into the subcutaneous tissue. जब subcutaneous tissue में leakage हो जाएगी तो there may be swelling and pain. Person को swelling होगी, pain होगी. And next is phlebitis. Itis means inflammation. Phlebitis means inflammation of vein. ठीक है, तो this may result from mechanical trauma due to insertion of too big a needle. अगर किसी छोटी वेन के लिए बड़ी नीडल का यूज कर दिया, बड़ा कैनुला आपने यूज किया, तो उस कंडीशन में भी फ्लेबाइटिस हो सकता है, या काफी लंबे टाइम से पेशेंट को कैनुला लगा हुआ है. तो केमिकल ट्रॉमा रिजल्ट फ्रॉम इरिटेशन फ्रॉम सॉल्यूशन एंड इन्फ्यूजिंग टू रैपिडली. और क्यों हो सकता है फ्लेबाइटिस? अगर सॉल्यूशन इरिटेटिंग है, ये बहुत जल्दी इन्फ्यूज कर दिया पेशेंट को, तो इट मे लीड टू द फ्लेबाइटिस. तो ड्यू टू फ्लेबाइटिस द स्किन में बिकम रेड और देयर इज इंक्रीज टेम्परेचर ओवर द कोर्स ऑफ द वेन. जहाँ पे फ्लेबाइटिस होगा वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा. तो the site should be changed and warm compresses should be applied. After that circulatory overload क्यों होगा? जब large amount of fluid patient को infuse करेंगे तो it may lead to the circulatory overload. तो the intravenous fluid compartment contain more fluid than the normal से अगर ज़्यादा fluid present है, and this occur when infusion is too rapid or excess volume is infused. तो दिस जब पर्सन को सर्कुलेटरी ओवरलोड अगर हो गया है तो उसमें क्या सिम्टम अपीयर हो सकते हैं? डिस्निया होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगी, पर्सन को कफ हो सकता है, फ्रॉथी स्पूटम और गर्गलिंग साउंड ऑन एस्पिरेशन. आफ्टर दैट एम्बोलिज्म. एम्बोलिज्म इज अ ब्लड क्लॉट विच इज प्रेजेंट इन द, इट माइट बी ब्लड भी हो सकता है, एयर बबल भी हो सकता है, फैट
का पार्ट भी हो सकता है। तो इट मे ट्रैवल इनटू द ब्लड वेसल। जो एम्बोलिज्म है ये ब्लड वेसल में ट्रैवल करता रहता है, ब्लड के साथ फ्लो करेगा, और जो थ्रोम्बोसिस है वो एक जगह पे स्टेबल रहता है, और इट इज अ ब्लड क्लॉट थ्रोम्बोसिस। बट एम्बोलिज्म ब्लड क्लॉट भी हो सकता है, एयर बबल भी हो सकता है, और फैट का पार्ट भी हो सकता है। तो इट इज अ फैटल कंडीशन। After that, duties of nurse during IV therapy. तो एक्सप्लेन द नीड फॉर द IV थेरेपी। पेशेंट को एक्सप्लेन करना है कि उसको क्यों IV थेरेपी की ज़रूरत है और क्या उसने कोऑपरेट करना है IV थेरेपी के टाइम पे। एंड हेल्प द पेशेंट टू मेंटेन एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, जैसे कि बाथिंग, ग्रूमिंग, फीडिंग एक्सेट्रा। ऑब्जर्वेशन शुड बी मेड। किन किन चीज़ों के लिए ऑब्जर्व करोगे? फ्लो रेट के लिए कि प्रॉपर ड्रॉप रेट पे पर्सन का फ्लूइड चला हुआ है या नहीं, इसका फॉर्मूला मैंने आपको करवाया है। जो ड्रॉप रेट का है, अमाउंट ऑफ फ्लूइड गिवन डिवाइडेड बाय टाइम इन मिनट्स मल्टीप्लाई बाय 60 इंटू ड्रॉप फैक्टर। तो थ्रू दिस वी कैन कैलकुलेट द ड्रॉप रेट। एंड पेटेंसी चेक करनी है ट्यूबिंग की, इन्फ्यूज़न साइट चेक करनी है, लेवल ऑफ फ्लूइड चेक करना है कि जो IV बॉटल है उसकी जो हाइट है दैट शुड बी प्रॉपर ऑन द प्रॉपर हाइट। ठीक है, 45 इंचेस पे वो होनी चाहिए। 45 centimeter height should be of the bottle. Then patient comfort और reaction to therapy check करना है। Any type of allergic reaction या embolus तो present नहीं है, circulatory overload etc. They should be checked. Change dressing on IV line as may be necessary. If the IV side dressing is swelled with blood, then it should be changed.